बजट में विकास पर खास जोर रहा है, लेकिन एक तरफ जहां वित्त मंत्री लगातार विकास की बात कर रहे थे, वहीं सेंसेक्स और निफ्टी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही थी। वित्त मंत्री से सबसे ज्यादा टैक्स में छूट की उम्मीद थी, लेकिन प्रणब मुखर्जी ने अपने बजट में नौकरी पेशा लोगों को आयकर में ज्यादा छूट नहीं देते हुए महिला और पुरुष आयकर दाताओं को आयकर सीमा में केवल 10,000 रुपए की बढ़ोतरी की है और बुजुर्गों की आयकर सीमा में 15,000 तक की छूट का ऐलान किया है। With a view to providing interim relief to small and marginal taxpayers and senior citizens, I propose to increase the personal income tax exemption limit by rupees 15,000 from rupees 2,25,000 to rupees 2,40,000 for senior citizens. Similarly, I propose to raise the exemption limit by rupees 10,000 from rupees 1,80,000 to rupees 1,90,000 for women taxpayers, and by rupees 10,000 from rupees 1,50,000 to rupees 1,60,000 for all other categories of the individual taxpayer. Further, I also propose to increase the deduction under Section 80DD in respect of maintenance, including medical treatment of a dependent who is a person with severe disability, to rupees 1 lakh from the present limit of rupees 75,000. People looked, the budget does that admirably well. And then simultaneously it also seeks to carry forward the process of inclusive growth, its expenditure programs, take care of our major flag program, Bharat Nirman, National Rural Employment Guarantee Act programs, the Urban Renewal Mission, the Rural Health Mission. All these programs receive handsome additional allocation. So I believe the Finance Minister has done an admirable job, as I said, in reconciling the requirements, short-term requirements of the economy with the medium-term goals of our economic and social policy and the commitments that we made to our people in our election manifesto. What will this do for people in rural areas particularly? It is essentially a rural development-oriented budget. The record increase in allocation for the National Rural Employment Guarantee Fund, the increased money for additional irrigation benefit scheme, the Bharat Nirman program, which seeks to upgrade and modernize rural infrastructure. These are all programs which will primarily benefit our rural areas and reduce the gap between Bharat and India. At the same time, there's a new urban emphasis. The urban mission has had a huge increase of 86% in the outlay. Well, the urban mission focuses on the infrastructure needs of our cities. We have identified 63 cities. Probably we will need to relook at the number in due course of time. Simultaneously, the emphasis on basic amenities for the poorer section, the slum-free India commitment also is taken into account. A new flagship program obviously is going to be the new Food Security Act. Every family getting 25 kilos of grain at 3 rupees. I didn't. तो प्रधानमंत्री तो खूब तारीफ कर रहे हैं इस बजट की, लेकिन बहुत ज्यादा सराहना मार्केट से नहीं मिल रही है। प्रधानमंत्री की छाप इस पर नजर आ रही है, खुद ही प्रधानमंत्री की छाप आ रही है। और देखिए, ये तो कहना बेवकूफी है कि प्रधानमंत्री को बजट पसंद नहीं आएगा। एक सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री विशेषज्ञ अर्थशास्त्री हैं और आखिर जैसा आपने कहा, एक बॉस वित्त मंत्री के हैं। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री को बजट उनकी निगरानी में, उनके दिशा निर्देश में बना है, पसंद आना ही था। जहां तक दूसरा सवाल है कि मार्केट को पसंद नहीं आ रहा है, मार्केट नहीं, शेयर मार्केट कहिए, तो शेयर मार्केट को ना पसंद आया। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि सटोरियों की निगाह में सबसे बड़ी कसौटी क्या है बजट की, वो मुझे सही नहीं। सटोरियों की आप बात कर रहे हैं। सेंसेक्स में थोड़ा सा करेक्शन अब ये देखने को मिल रहा है, 548 पॉइंट हो गया है, 750 से थोड़ा सा रिकवर किया है। सचिन, क्या अपडेट है, क्यों मायूस है स्टॉक मार्केट के लोग?
देखिए साफ तौर पर यहाँ दराज स्ट्रीट मायूस नजर आ रहा है निशांत इस वक्त। कुछ लोग मेरे साथ है, आइए सबसे पहले उनसे बात करते हैं। सबसे पहले एनालिस्ट है हमारे साथ। भोजवानी साहब बताइए कि आखिर क्यों नाराज होना पड़ा मार्केट को, आखिर क्या वजह बात है? मार्केट को बहुत उम्मीद थी, बहुत सारे रिफॉर्म्स, बहुत सारे FDI इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, बहुत सारे डाइवेस्टमेंट की चीजें और उसके अलावा डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्सेस में ऑल्ट्रेशन रिफॉर्म्स आने वाले थे, तो कुछ भी नहीं आया। ये बजट का इंप्रेशन ये है कि इट इज टू शॉर्ट टू लेस। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उम्मीदें टूटी है? मुझे लगता है कि जो वापस चुनाव जो 4 राज्य में आने वाला है वो ध्यान में लेके इस बजट को तैयार किया गया है। इन्फ्लेशन जो फूड आइटम्स का है उसके लिए कुछ स्टेप्स लिए नहीं गए कि आम आदमी को कैसा फायदा हो। आम आदमी की कीमत डाउन हो रही है, धंधा पानी नहीं है, बारिश नहीं है, सिर्फ खासदार लोगों की आमदनी हर 5 साल में 400-500 टके बढ़ती है बिना कुछ काम किए हुए। तो मेरा फाइनेंस मिनिस्टर को एक ही गुजारिश है कि जो पार्लियामेंट की जो एक्सपेंसेस है वो काम करे, क्योंकि सब करोड़पति है और वो गरीब आम आदमी की सत्ता कर रहे हैं। आपसे पूछना चाहेंगे कि किस तरह से एक तरह से नकारा गया है, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम शिवशंकर दमानी। मार्केट को इतनी भारी उम्मीद थी कि एक मार्केट को पौष्टिक ऊर्जा और सकारात्मक आर की उम्मीद थी जो थी ही रह गई। और प्रगति की दिशा में बात करें तो ऐसा लगता है कि सब दिशा थी वो दिशा ही नहीं रह गई है। न किसी को कुछ मिला न किसी का कुछ गया, लेकिन जो स्थिति है वो और नाजुक स्थिति ही बनते जा रही है। इससे न तो आम जनता को लाभ है और न शेयर बाजार को लाभ है। भोजवानी साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि आप फिस्कल डिफिसिट को लेकर कम करने को लेकर हो या फिर रिफॉर्म्स को लेकर हो, जो टैक्सेस है उसको लेकर हो, कॉर्पोरेट टैक्सेस को लेकर कुछ भी नहीं है। कितना क्या लगता है आपको मार्केट किस तरह से आप ट्रेंड पकड़ेगा? मार्केट शॉर्ट टर्म में नेगेटिव रिएक्ट करेगा, लेकिन ऐसा कोई नेगेटिव प्रपोजल नहीं है जिससे इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर को कोई भारी नुकसान या भारी हिट हो। जी जी, अब सचिन आपके साथ जो एक्सपर्ट्स थे उनकी राय हमने सुनी। हमारे साथ स्टूडियो में कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो हर क्षेत्र पर नजर रखे हुए हैं। मनोज कुश जो कि शेयर मार्केट एक्सपर्ट हैं। मनोज जी, ऐसा लगा वाकई कि दिशा तो मिलते मिलते रह गई, दिशाहीन हो रहा है इस वक्त मार्केट। बहुत सी आस लगाए हम बैठे हुए थे, खासकर कहा जा रहा था रियल एस्टेट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन इस वक्त दिशाहीन लग रहा है बाजार। जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही बिल्डअप हो गई थी इसको लेके, पहले सारे जो रिएक्शन हो रहा है मार्केट का, इसमें जो कॉफी पुष्पेश जी शायद एग्री नहीं करेंगे मेरे से, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कुड हैव हैपेंड एंड व्हिच डिड नॉट हैपन। मतलब उसका जैसे बाकी चीजों में तो प्रणब मुखर्जी ने अपना इंटेंशन दिखाया, यहाँ तो इंटेंशन भी नहीं दिखाया उन्होंने। वैसे मतलब लग रहा था STT में कुछ करेंगे, उसमें कुछ नहीं किया। बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर, उसकी पेंशन सर्विसिंग का था, और जहां तक हम सटोरियो बाजू की बात है मतलब वो अलग बात है, बट पॉइंट है कि मार्केट भी जैसे एक इवेंट को हर सेक्टर रिएक्ट करता है, हमारे लिए भी शेयर मार्केट के लिए भी एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। हर इवेंट से कुछ ना कुछ पॉजिटिव की उम्मीद चलती है, तभी एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप करते हैं। एंड एज फार एज दैट वाज गॉन, उसमें तो इट वाज वेरी हाई ऑन, मतलब परफॉर्मेंस में तो ऑलमोस्ट कुछ रहा ही नहीं है। मतलब एक्सपेक्टेशन आने वाले समय में आप इस मार्केट में करेक्शन देख रहे हैं या फिर आपको लग रहा है जिस तरह का ऐलान है उससे ये मार्केट में और गिरावट आने वाले दिनों में दिखेगी? ये जैसे मैंने पहले भी बोला था, आई थिंक जो यूफोरिया है इसका बजट का, इट शुड डाई इन अ डे और टू। अगर सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता तो शायद 2 दिन में 3 दिन में शायद 1,500 रुपए बढ़ जाता, 1,500 सेंसेक्स। अब वो थोड़ा जो है कि वो थोड़ा नेगेटिव साइड में हो गया, बट थिंग्स विल स्टेबलाइज। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सब कुछ लुट गया है, because whatever his policies are, the intention is over a very very long period। जैसे अगर थोड़ा सा कुछ हमारे लोगों के लिए भी कर देते तो शायद रिएक्शन पॉजिटिव हो जाता, which was not the case। What the economy really wants was कि पैसा लोगों पे आए। वो इनकम टैक्स लिमिट भी इन्होंने दिखाया नहीं कि लगे कि लोगों पे पैसा आए और कुछ मतलब ओवरऑल स्पेंडिंग हो। अगर ओवरऑल इकोनॉमी इंप्रूव करेगी तो सेंसेक्स को किसी चीज का डर ही नहीं है। वो एक इंटेंशन नहीं दिखाई दिया कि लोगों की जेब में पैसा डालने का इनका भी इंटेंशन था। मनोज, क्या ये समझा जाए कि एक जो पुरानी पॉलिसी, एक पुरानी थ्योरी जो कही जाती है कि सेंसेक्स स्टॉक मार्केट ऑलवेज डिस्काउंट्स द फ्यूचर, यहाँ पर आप लोग फ्यूचर्स थोड़ा सा देखने में थोड़ा गड़बड़ हो गई, वो सूद जेर आपके फेल हो गए? नहीं, वो सूद जेर तो खैर जब इंडेक्स 7,000 गया था तो बाकी सब कुछ फेल हो गया था, ऐसा वो तो है ही। खैर मार्केट मूव्स अहेड ऑफ एक्सपेक्टेशंस, दैट इज ओके। बट यहाँ पे जो ये मैं शॉर्ट टर्म की एक्सपेक्टेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपेक्टेशंस व्हिच कुड हैव रियली डन वेल फॉर द मार्केट। नॉट मार्केट डूइंग वेल मींस द इकोनॉमी डूइंग वेल। मार्केट अगर इकोनॉमी बिल्कुल खड्डे में हो जब वर्ल्ड मार्केट वाज डाउन, ऐसा तो है नहीं कि सेंसेक्स खड़ा हुआ था।
सो एंड आयु आप क्या अब मनोज इस चीज को लेकर परेशान है कि प्राइवेट सेक्टर इंक्लूडिंग बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स नहीं देखे हैं, इन्वेस्टमेंट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिखा है। एग्जैक्टली एंड आई टेल यू बैंकिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बेसिक, बैंकिंग इज द बेसिक वे टू द इकोनॉमी, आई थिंक सो। अगर बैंकिंग पे मेजर थ्रस्ट होता या इंश्योरेंस, चलो इंश्योरेंस आई विल नॉट से सो मच, बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर तो मेनस्टे है यार इकोनॉमी का। लाइक एज आई सेड इन द बिगिनिंग कि मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज यही दो हैं, एक करता है और दूसरा पैसा देता है। आपको थोड़ा सा नोट करते हैं यहाँ पर पुष्पेश जी दिख रहे हैं। पुष्पेश जी वो काफी मनी इज नॉट कमिंग इन। मनोज भाई कह रहे हैं उनसे उतनी बुरी तरह मैं असहमत नहीं हूँ जितना उनको आशंका है। मुझे लगता है मैं ये देखना चाहता हूँ जिन आशाओं की वो बात कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस की, वो एक सीमित वर्ग की निराश हुई है। भारत की आबादी के बड़े हिस्से के लिए इस बजट में निराशाजनक कुछ नहीं है। उसमें शिक्षा पर खर्च है, स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च है, ग्रामीण विकास पर खर्च है, और ये सब खर्च भी रोजगार पैदा करेगा। ये भी लोगों की जेब में पैसा डालेगा। भले उस पैसे की मात्रा एक दिन में शेयर खरीद बेचकर लाखों करोड़ों नहीं होगी, 100 रुपए रोज की दिहाड़ी मजदूरी की होगी, मगर खर्च वो भी होगा और उससे मंदी दूर होगी। पुष्पेश जी मैं इसी बात पर आ रही थी। मनोज आप सुनील जी को क्या कह रहे थे? आपके बगल में वो बैठे थे इस बजट के दौरान, क्योंकि उन्होंने 10 में से 10 नंबर दिए इस बजट को। आप बहुत निराश, आपने उनसे क्या होगा ये मैं सोच रही थी। मेरे को लग रहा है कि काफी इंप्रेस्ड हैं हमारे सुनील जी प्रणब मुखर्जी के, ये भी लॉन्ग टर्म प्लेयर लग रहे हैं। और आई थिंक सो ये शायद भूल गए हैं कि सरकार जो बोलती है और करती है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। सो आई थिंक सो जो इन्होंने बिल्कुल जो मुखर्जी साहब बोले हैं उसको बिल्कुल ही अपने हार्ट में ले गए हैं और सब कुछ मान लिया उनकी बात। सुनील जी डिलीवरी में बहुत डिफरेंस रहता है। सुनील एक चीज यहाँ पर समझना चाहेंगे, एक नई चीज का क्रिएशन हुआ है और ये काफी लोगों के लिए हेल्प कर सकता है। IIFCL यानी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो बैंक काम करती थी, क्या ये माना जाए वो सारा काम अब ये देखेगा जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है? और इसमें किस तरीके से पूरा प्रोसीजर, ये तो बाद में क्लियर होगा, लेकिन आपका पहला रिएक्शन क्या है? अभी ये लगता है कि IIFCL इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया करता था, अभी तक बहुत कम स्तर पे किया करता था, उसको इन्होंने बूम दिया है। 1 लाख करोड़ रुपए जिस तरीके से इन्होंने कहा है उसके लिए इन्होंने रखे हैं। लेकिन इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि सेक्टर पे क्या उतना ज्यादा फेथ नहीं है? नेशनलाइज्ड बैंक को अपने साथ में लेके और जितना भी बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करेंगे उसको ये रीफाइनेंसिंग 60% उसका ये IIFCL करेगा, या डायरेक्ट फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को ये करेगा। उसका कहीं ना कहीं फायदा इकोनॉमी को भी मिलेगा। जब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे इस देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और दूसरी जो चीजों की खपत है, चाहे वो स्टील है, सीमेंट है, सारी चीजों की खपत भी बढ़ेगी। तो एक्चुअली सेंसेक्स को ये नहीं देखना चाहिए कि आज क्या हो रहा है, दूरगामी परिणाम देखने चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा किसी भी देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। लेकिन सुनील एक चीज यहां पर क्लियर नहीं है, सर्विस सेक्टर की अगर बात की जाए, प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, ये एक सेटअप किया गया है, लेकिन कहां इन्वेस्टमेंट होगा वो नहीं क्लियर है। पब्लिक डोमेन में चीजें काफी क्लियर हैं, काफी ज्यादा क्लियर है, बल्कि ये कहा जाए जो अपने वादे किए गए थे उन पे पूरा खरा उतर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ये अनऑर्गेनाइज लग रहा है, थोड़ा उल्टा हो गया। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा लग रहा है कि देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है वो पब्लिक सेक्टर की तरफ ज्यादा ध्यान लग रहा है। इसमें ऐसा नहीं लग रहा कि प्राइवेट सेक्टर को कोई बहुत ज्यादा इसमें तवज्जो दी जाएगी। प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाएगी ऐसा लगता नहीं है। नहीं, मुझे लगता नहीं कि ऐसा, बल्कि जो करेक्शन की आप बात कर रहे हैं सेंसेक्स में, धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि जैसा हमारे मित्र कह रहे थे कि किसी के पास से कुछ गया नहीं है, ऐसा नहीं है, पाया सबने कुछ है। आप 3 उदाहरण लें, कोल्ड चेन राष्ट्रव्यापी बनेगी, गैस की पाइपलाइन देशव्यापी बनेगी, और एग्री सेक्टर, बिजनेस सेक्टर में जो लोग इन्वेस्ट करेंगे उनको छूट मिलेगी। तो इसमें अगर आप देखें देश के सभी प्रमुख औद्योगिक घराने जुड़े हुए हैं, कोई बिरला परिवार जुड़ा हुआ है, और सुनील मित्तल का कारोबार जुड़ा हुआ है, रिलायंस बंधुओं का परिवार जुड़ा हुआ है। तो धीरे धीरे लोगों को समझ में ये बात आएगी कि बिना खुलेआम कुछ कहे अपने औद्योगिक मित्रों की देखभाल की गई है। लेकिन अभी पहला झटका ये है कि कॉर्पोरेट टैक्स से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, वो वैसा का वैसा ही है, और STT में भी कुछ नहीं बदलाव किया गया। स्टॉक मार्केट का हाल बुरा है, लेकिन थोड़े बहुत करेक्शंस होते दिखाई दे रहे हैं। वक्त हो गया एक ब्रेक।